कृष्ण। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Jai Radha Vallabh Shri Radhe Jai Radha Vallabh Shri Radhe Jai Jagannatha Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannatha Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Gauranika 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 Nita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nita Gaura Hari Bol Nita Gaura Hari Bol Hari Bol Nita Gaura Hari Bol Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada श्रीला प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभु करेंगे नंदनाष्टकम Yes, Prabhu. Just before we start, Neha Mataji, Tashi Sikshashtakam गा लेगी after this? चलो कोई नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, आप स्टार्ट करो प्रभु।
तो स्क्रीन दिख रहे? दिख रहा है? नंदनाष्टकम। सुचारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजम् शिखिशिखण्डमोदजम् अनन्तकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकम् स्वच्छदन्तपङ्क्तिकम् नवाम्बुदाङ्गचित्कणम् नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितम् गतिकरीन्द्रगञ्जितम् दुकूलपीतशोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरम् नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धाङ्गसौरभम् पुरोविराजिकौस्तुभम् स्फुरत् श्रीवत्सलाञ्छनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनसुनागरम् विलासानुगवाससम् सुरेन्द्रगर्वमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृजाङ्गनासुनायकम् सदा सुखप्रदायकम् जगन्मना प्रलोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकम् पठेद्यश्रद्धान्विता तरेद्भवाब्धिद्वस्तरम् लभेदङ्घ्रियुक्तकम्। इति श्री नंदनाष्टकम संपूर्णम। श्री नंदनाष्टकम की जय। थैंक यू प्रभु जी। उत्तम माँ से की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सो अभी ताशी हमको शिक्षाष्टकम सुनाई और उसके बाद वी विल स्टार्ट। नेहा माता जी, जब whenever you ready। श्योर प्रभु जी वॉशरूम में, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु। We still waiting for few people, माता जी, so all good। ओके प्रभु जी। Can I recite? Yes, you can recite now। Hare Krishna. I am reciting Krishnashtakam today. चेतोदर्पणमार्पणं भवमहदापातिनिर्वापनं शैरकेरवचन्द्रिका
विद्यावितारणं विद्यावतो जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्ण प्रतिस्वादनं सर्वात्मस्थापनं वरं जयते श्रीकृष्ण संकीर्तन नाम्नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि अमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि तुद्दैवम् ईदृशम् इह जाने ननुरागः त्रिनादपि सुनिचेनादरोरपि सहिष्णुना अमानेनामानतेनागर्तनीयास्ता हरि नथनं नचनं न सुन्दरे कवितं वा जगदीशगामि मम जन्मनि जन्येश्वरे भवतात् भक्ते अहेतुकी त्वयि नन्दितनूच किङ्करं पतितं मां विश्वमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्तुतधूलिसदृशं चिन्तया नयनं कलाथ अश्रुधरया वदनं कत्कदा रुद्रया गिरापुलके निशितं वापुकदा तव नामाग्र्यने भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायतं शून्यातीतं जगत्सर्वं गोविन्दाविर्हे नमः आश्लिष्य वापदार्थांपि नस्तु माम् आदर्शनान्मर्महातं करोतु वा यथा तथा वा विधातु लम्पत मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापराः हरे कृष्ण Thank you, beta. Hare Krishna. So, welcome to our verse 6 of Shishtastakam. Just give me 1 second. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanshalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahigana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Savdetam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shri Sahigana Lalita Shri Vishakhan Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vindhyavaneshwari Vrashabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum nangayate girim yat kapatam hamande Shri Guru Deen Tarayam Namo Vishnu Padaya Krishna Vashtaya Putre Shri Madhya Samiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Picharane Nirvishesha Shuna Adi Paschate Deshakaranya Srila Prabhupada ki jai. So I will share my screen. So we'll do the verse 6 today. तो वर्स 6 हमें बताता है नयनम गलद अश्रु धार्या वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वापु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। और इसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण भगवान से, हे प्रभु आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो ये जो भाव है ये एक प्रेयर है जिसमें हम लोगों ने पहले जो कुछ वर्सेस देखे थे उसमें हमें पता चला नाम संकीर्तन की क्या महिमा है। और उसके बाद ये जो भाव है, ये जो चैतन्य महाप्रभु इस भाव की बात कर रहे हैं, ये उस भाव की बात कर रहे हैं जिसमें जैसे हम लोगों ने बोला था ना स्टेजेस ऑफ भक्ति, तो उसमें होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नहीं बोला नहीं, सॉरी, जो स्टेजेस ऑफ भक्ति क्या थे, किसी को याद है?
स्टेजेस ऑफ भक्ति। प्रभु दास्यम साख्यम। हाँ, शुरू में स्टार्ट में किससे होता है? वंदनम, अर्चन, याद नहीं आ रही पूरी। और कोई? वो जो श्रवणम कीर्तन, जो अब मैं इसमें जो भाव की बात हो रही है, एक सेकंड, कोई मैं 1 मिनट फोन बंद कर देता हूँ, मेरा ना फोन आ रहा है। सो इसमें जो भाव वाली और लास्ट जो स्टेज होती है वो होता है प्रेमा। प्रेम से पहले जो स्टेज होती है वो होती है भाव स्टेज, है ना। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु इस भाव की बात करते हैं। जो भाव भक्ति होती है उसमें क्या होता है, डिवोटी जो है वो भगवान को साक्षात देखने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब अब उसको उसमें इतनी क्वालिफिकेशन आ गई है तो भगवान को आमने सामने देख सकता है। क्योंकि उसको इतनी क्वालिफिकेशन आ गई है, उसका मतलब क्या है कि जो शुरू में हमने पढ़ा था चेतो दर्पणम अर्जुनम, दैट मीन्स वो जो हृदय है वो धीरे धीरे साफ हो गया। वो इतना साफ हो गया है कि हमें, मतलब इंसान प्राणी को अपनी सही पोजीशन, जो हमारी जो सही पोजीशन है वो पता चल गई कि मैं दास हूँ, और हमारी रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर। और जब ये बात एकदम क्लियर हो जाती है, चेतो दर्पण मतलब हमारा हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसके बाद ये एस्थेटिक सिम्टम्स आते हैं जिसको कहते हैं भाव। ये भाव अभी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के क्या होते हैं। उसमें से इसमें कुछ तो इन्होंने बोले हैं महाप्रभु ने इसमें कि मतलब कि जब आपका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जैसे कभी रोना आ रहा होता है खुशी में तो एकदम मुंह से आवाज नहीं निकलती ना, वैसे, और आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब चीजें, ये सब जो भाव हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों से शेयर करे थे और तब जाके इनको लिखा गया था। तो ये जो भाव हैं, जैसे अभी हरिदास ठाकुर, एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर, अब ये जो भाव हैं ये कभी भी आ जाते हैं, क्योंकि आदमी अगर उनका मन का दर्पण साफ हो चुका है, उनको अपने भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्लियरली पता चल गया है, तो क्या होता है कि अपने आप वो हर जगह कोई भी चीज देखते हैं उसमें भगवान को देखने लग जाते हैं, है ना। तो प्रभु जी हरि बोल। ये भाव साधना, प्रेम और भक्ति, यही वाले भाव पूछ रहे थे प्रभु? हाँ। तो जिसमें जो एंड में आता है ना रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट है वो है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति। तो हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर प्योर अपने शुद्ध भक्त हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने ना एक सपेरे को देखा सांप के साथ, वो सांप को बीन बजा के उसको वो करतब दिखा रहा था। हरिदास ठाकुर ने जब जैसे ही उस सांप को देखा, उनको अपना कालिया, वो कृष्ण भगवान का कालिया दमन का वो पास टाइम था, जो उनकी लीला थी, वो याद आ गई, और उसके कारण वो एकदम जमीन पे गिर पड़े, उनके मुंह से झाग आने लगे, वो पागलों जैसे हरकतें करने लग गए, उनको सारे रोंगटे खड़े हो गए, वो उठते गिर जाते। तो अब जब उनको थोड़ा सा होश आया, जब उनको समझ में आया कि मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उठे। लेकिन जो बाकी लोग आसपास में थे उनको पता था हरिदास ठाकुर बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो सब लोग सब लोग, किसी ने कोई वो परेशानी नहीं दिखाई, और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उनके सामने ये हुआ। और जैसे ही हरिदास ठाकुर को समझ में आया कि लोगों ने उन्हें देख लिया इस भाव में, तुरंत वो वहां से भाग गए। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनको अगर इस तरह के भाव आते हैं तो वो, और किसी को पता चलता है तो वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए और रुकते नहीं है, उनको समझ में आ गया कि यहाँ से निकल जाना भी ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है, ये जो भाव हैं इनको इमिटेट भी नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको ये भाव नहीं आते हैं इसका मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई शुद्ध भक्त जो हो उसको ये भाव आए और वो आप लोग या हम लोग देखें उसको। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरी है। उसके बाद जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शुरू में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया था कि ना चेतो दर्पणम अर्जुनम, अपना मन का दर्पण साफ करेंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा साफ होने लग जाता है मन, हमें समझ में आने लग जाता है कि हमारा ये शरीर है, ये हम जो हैं ये शरीर नहीं है। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल।
हम ये शरीर नहीं है। और उससे भगवत गीता में जो था ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न आकांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो उससे क्या होता है, इमीडिएटली लोग पता चल जाता है इस पर्सन को कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जैसे ही ये पता चल जाता है तो एकदम से वो जॉयफुल हो जाता है, मतलब एकदम से उसका जो प्रसन्नता की सीमा है वो एकदम ऊंची हो जाती है ना। तो सुमित प्रभु ने शेयर करा है, तो 9 स्टेजेस भक्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेमा। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग। हाँ, तो जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हम ही आत्मा नहीं, हम लोग शरीर नहीं है, हमें आत्मा है, मतलब हम लोग शरीर नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमारा जो ईगो होता है ना, ईगो जो मैंने और अनूप प्रभु ने इस बारे में बहुत बार बात करी है। ईगो जो होता है, ईगो हमारी खुशी का सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो ईगो है ना। ईगो का मतलब क्या है, हम लोग अपने शरीर से, हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि मेरा नाम, कोई मुझसे पूछता है मैं कौन हूं, तो मेरा मुंह से निकलता है ब्रिजेश, लेकिन ब्रिजेश मैं नहीं हूँ, ब्रिजेश मेरा नाम है। फिर वो पूछते हैं आप फिर और अपने बारे में और बताओ, तो मैं लोगों को बताता हूँ मैं कहाँ जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ, तो ये सारी जो डेजिग्नेशंस हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशंस हैं। तो जैसे जैसे चेतो दर्पण मार्जनम शुरू होता है, जैसे जैसे हमारे मन का दर्पण साफ होता जाता है, वैसे वैसे हम ये जो मिथ्या आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इससे दूर चले जाते हैं और हमें हमारा ईगो टूटता हुआ दिखता है। और ईगो जब निकल जाता है, जैसे ही ईगो या जैसे ही आपका फॉल्स ईगो निकल गया, खत्म हो गया और आप उसके पार देखने लग जाते हो, वैसे ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम एक्सटेसी में चला जाता है और हम लोग एकदम जॉयफुल हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि और वैसे तो हमारा जो ट्रू नेचर है वो जॉयफुल ही है, सत्य चित आनंद है ना, हम आनंदित हो जाते हैं। हमारा जो नेचर है, इनहेरेंट नेचर है, वो है सत्य चित और आनंद, है ना। अब जब हमारी आदत है कि हम हमेशा खुश रहें, हम आनंदित रहें, लेकिन हम जब ये भौतिक चीजों की संपर्क में आते हैं तो हमारा ये जो ईगो है, हमारा जो ये फॉल्स ईगो है, ये आ जाता है, हमारा मिथ्या अहंकार, और उसके कारण सारी की सारी दुनिया की जितनी एंजाइटीज हैं वो उसी के कारण है, क्योंकि हमारा वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से कांटेक्ट में आया है और हम उससे एंजाइटी में आ गए। और इसीलिए ना वैकुंठ, एंजाइटी का मतलब है कुंठा, और बैकुंठ का मतलब होता है जहां पर कोई कुंठा नहीं हो, है ना, भगवत धाम। तो अगर हमें इस एंजाइटी से निकलना है, ये जो, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत से दूर तो रह नहीं सकते, है ना, हम लोग कहीं जंगल में जाके बैठ जाएं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, हमें भौतिक जगत में ही रहना है। तो उसमें अगर हमें अपनी एंजाइटी, हमारी कुंठा को कम करना है, अपने आप को उससे बचाना है, तो हमारा लिए सबसे सिंपल उपाय है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। हरि नाम के बिना कोई रास्ता नहीं है, इस एंजाइटी से, इस कुंठा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है ना। तो कई लोग बात करते हैं लिबरेशन की, मुक्ति का मतलब, हम लोग कई बार सोचते हैं मुक्ति का मतलब ये शरीर छोड़ दिया और फिर ये शरीर से हम ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए, तो उसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन सही में जो मुक्ति है वो क्या है, अगर आप इस फॉल्स ईगो से निकल सकें तो वो अपने आप इसी शरीर के साथ मुक्त हो सकते हो। लिबरेशन जिसे कहते हैं, एक्चुअल लिबरेशन जो होती है वो क्या होती है, सही मुक्ति क्या होती है कि आप अपने आप को, अपने शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दें, या फिर आपका जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन है उसको अच्छे से समझ जाएं, और ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है ये आपको परेशान ना करे, तो इसका मतलब आप लिबरेटेड हो। तो एक्चुअली हम लोग सब लोग आनंद की तलाश में, हर कोई आनंद की तलाश में, जो भी पूरा का पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करा गया है वो हमारे फॉल्स आनंद के लिए क्रिएट करा गया है ना। तो
एक्चुअली क्या है, हर मौके पे हम लोग ना इस एंजाइटी से, इस कुंठा से मार खाते रहते हैं बचपन से लगा के। शुरू में एग्जाम पास होने की एंजाइटी, उसके बाद नौकरी की एंजाइटी, फिर शादी की एंजाइटी, फिर बच्चे की एंजाइटी, फिर बच्चे के स्कूल की एंजाइटी, फिर बच्चे के कॉलेज की एंजाइटी, फिर बच्चे की जॉब की एंजाइटी, फिर बच्चे की शादी की एंजाइटी, फिर उसके बाद पोतों की एंजाइटी, है ना, उसके बाद पोतों की पढ़ाई की एंजाइटी, फिर उसके बाद पोतों के कॉलेज की एंजाइटी। तो स्टार्ट से लेके एंड तक एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, क्योंकि ये जो हमारी मार पड़ रही है मटेरियल वर्ल्ड से, जो भौतिक जगत से हमें इतनी मार पड़ रही है, ये इससे अगर हमें बचना है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हरि नाम का वो लेना पड़ेगा, शरण हमको लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो ये तो हमारा, ये जो था, ये हमारा जो फर्स्ट था। अब इसमें क्या है, और हमें ये भी पता है कि अभी कोविड चल रहा है, इतने सारे लोग डेली मर रहे हैं, है ना, इतने सारे लोग परेशान हैं, डिवोटीज के फैमिलीज बहुत परेशान है, इंडिया में काफी सारे डिवोटीज की फैमिलीज बहुत परेशान है। तो इतना सब कुछ चलने के बावजूद अगर हम अभी भी अपने आप को इस भौतिक जगत की और इस फॉल्स ईगो की आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और हमारे पास इससे छूटने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। एक्चुअली क्या है कि कई लोग, जैसे मैं 1999 से, आई थिंक नहीं 2003 से मैंने हर तरह की बुक्स पढ़नी शुरू करी हैं सेल्फ हेल्प के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। और मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं, अलग अलग जगह से मेडिटेशन टेक्निक सीखी हैं, काफी सारी चीजें मैंने सीखी हैं कि मैं इस एंजाइटी को कैसे कम कर सकूं यार, और अपना जो ट्रू पर्पस है लाइफ का, उसको कैसे समझ सकूं, है ना। तो और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, ये काफी सारी चीजें आप लोग देखते हो यूट्यूब में, काफी सारे वीडियोस हैं, काफी सारी बुक्स हैं ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हैव कॉन्फिडेंस। आप अपनी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हो, आप लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हो, मैंने वो सारी चीजें बहुत पढ़ी है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो कोई भी, कितने भी मैंने कोर्स करे हों, कोई भी चीजें मैंने पढ़ी हों, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मेरी जो एंजाइटी है वो कम हो गई। टेम्परेरीली सुकून मिलता है कि यार कुछ सीखा, एकदम से उसको अप्लाई करा, थोड़ा सा मजा आया, लेकिन एंजाइटी फिर वापस आ जाती है। तो कभी भी मेरे को कोई ऐसा सोर्स मिला नहीं जहां से मेरे को वो जो एंजाइटी है उसकी परमानेंटली उसको खत्म करने का कोई इलाज मिले। और मैंने काफी मेडिटेशन करी, मैं अभी भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, और काफी हेल्प है उससे। मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग बहुत जरूरी है अगर सेवा करनी है, साधना करनी है तो। लेकिन अगर एंजाइटी से बचना है तो कोई भी यूट्यूब की वीडियो या फिर कोई भी बुक जो अभी भौतिक जगत में मिलती है, वो आपको एंजाइटी से मुक्त नहीं करा सकती है सिवाय महामंत्र के। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ रियलाइज करा, ऐसा नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है, बहुत थोड़ा सा, और लेकिन हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारी दुनिया में लोग अलग अलग तरीका अपना रहे हैं एंजाइटी को खत्म करने का, लेकिन नहीं मिल सकता। वो जो है ही नहीं, वो कहाँ से मिलेगा, है ना। अगर आप शहद की जो जार है, शहद की जो डिब्बी है, उसको खोले बिना शहद का मजा लेना चाहेंगे, टेस्ट करना चाहेंगे, तो नहीं आएगा। उसको बॉटल को बाहर से चाटते रहेंगे तो शहद पता ही नहीं चलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते, आपको उसमें पानी में जाना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए, है ना। ऑनलाइन आपको दिखा देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे स्विमिंग होती है, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे नहीं आएगी स्विमिंग। तो अगर आपको मटेरियल मिजरी से बाहर निकलना है तो काफी सारे लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन वो ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे वो बहुत टेम्पररी रिलीफ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी का सिर पकड़ के पानी में डुबो दिया, जैसे पहले वो करते थे, टॉर्चर करते थे लोगों को, पानी में डुबोया, और जब वो उसकी बिल्कुल सांस मरने वाला था तो बाहर निकाल दिया, तो एकदम से उसने सांस ली, तो एकदम से उसने सांस ली तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है वो एक्चुअली, और फिर वापस उसको पानी में डाल दिया। तो वो जो अच्छा उसको लगा वो एक्चुअली खुशी नहीं है, वो दो मिजरीज के बीच का जो गैप था जिसमें मिजरी कम थी, वो गैप है। तो हम लोगों को जो खुशियां मिलती हैं वो सारी की सारी वही खुशियां हैं जो उस गैप में मिल रही हैं। जो भी दो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम हैं उसके बीच का जो टाइम है वही हमारी खुशी है, जबकि वो एक्चुअल खुशी वो नहीं है। एक्चुअल खुशी तो वो है जो परमानेंट रहे, एक्चुअल खुशी वो है जो किसी भी कीमत पे आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। हर किसी को मरना है, या तो जो लोग मर गए मतलब मौत ने उनको मुंह में रख लिया है, और कुछ लोग प्लेट में पड़े हैं जो अभी मौत उनको लेने ही वाली है। हम सब की वो हालत है, ठीक है। अब ये जो हालत है, इस हालत में रह के लोगों को लगता है कि यार पहले कंफर्ट तो देख लें। तो वो कंफर्ट में क्या होता है कि हम लोग उस छोटी छोटी सी खुशियों को सही मान लेते हैं जो उन दो दुख भरी सिचुएशंस के बीच में है। वो एक्चुअली खुशियां नहीं है, वो एक तरह का छोटा सा रिलीफ मिलता है हमें, दो मिजरीज के बीच में एक रिलीफ मिला, हम उसको खुशी मान लेते हैं। वो खुशी है नहीं। खुशी का मतलब होता है आनंद। आनंद का जो ट्रांसलेशन होता है वो ऐसी स्टेज होती है उस आनंद में कि मतलब आपकी वो जो आनंद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शरीर ले नहीं पाता है। ये जो भौतिक शरीर है उस आनंद का, वो जो प्योर आनंद है उसको ले ही नहीं पाता है। तभी तो वो सिम्टम्स आते हैं कि आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, इतनी ज्यादा खुशी है उसमें कि ये भौतिक शरीर हमारा ले ही नहीं सकता है। तो कहते हैं प्रेम भक्ति जो है वो उसमें इतना रस है कि हम इस भौतिक शरीर के साथ वो प्रेम भाव ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बॉडी की, इस शरीर की औकात ही नहीं है उसको झेलने की, है ना। तो अभी हम ये देखना है कि जो हरि नाम है, हरि नाम की जो थोड़ी सी महिमा है वो हम अभी देखते हैं। मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूं और उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे क्विकली एंड देन विल मूव ऑन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है अभी भी? हाँ प्रभु। ओके। हरि नाम की महिमा कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता कि मेरी नाम की कितनी महिमा है। जब खुद भगवान ना बता पाए अपने नाम की महिमा, अरे तो कितनी महिमा होगी भगवान के नाम की। और नाम की महिमा वही बता पाता है पूरी तरह से जिसने नाम पूरी तरह से आस्वादन किया। तो इसलिए जो नाम है ये ही सार है। और नाम क्यों दिया आप सब जानती हैं, नाम हमें क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे अधिक नलायकों की मंडली चारों युगों में से कौन सी युग में मिलती है? कलयुग में। तो हम लोग नलायकों की मंडली असल में, है ना। ध्यान हमसे लगना नहीं, और ध्यान कहाँ का लगता है हमको वो बता नहीं सकते। ध्यान योग की शक्ति है कलयुग वालों के पास, लेकिन ध्यान योग का वो ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो अच्छा है नहीं पता लगता किसी को। इसे भक्त शेयर कर रहे थे कि बड़ा अच्छा है कि ना हम लोग एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, नहीं तो हम किसी में विश्वास नहीं कर पाते। तो हो बाहर से तो आप बड़ा गुड मॉर्निंग करते हैं, अंदर आपकी ये भावनाएं भरी हुई हैं। ओहो, तो इसीलिए ध्यान तो लगना नहीं चाहिए हमारा। और जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ से खींच के भी वापस आता नहीं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ खींच के लगता नहीं। तो ध्यान योग तो हमसे होना चाहिए। नहीं जी, दान कर ले कलयुग वाले, बेचारे दान भी नहीं कर पाते कलयुग वाले। तो जैसे एक में 2000 रुपये का नोट था और 10 का नोट था, दोनों में बातचीत चल रही थी। तो 2000 रुपये के नोट 10 के नोट से कहा क्या ले टुच्चे 10 के नोट, तेरी क्या औकात? हमारे आगे देख 3 0, तेरे आगे देख 1 ही 0। सब जगह हमारा बोलबाला है। तो 10 के नोट ने कहा ऐसा नहीं कि सब जगह तेरा ही बोलबाला है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम ही दिखते हैं तो तू दिखता भी नहीं वहाँ पे, वो है मंदिर की हुंडी। मंदिर की हुंडी में से 10 का नोट ही नजर आता है। 2000 कोई विरला होता है, कोई गलती से हो 2000 भी चला गया, अरे
और 10 का वो नोट जो कि मार्केट का रिजेक्टेड है। कहते हैं कि चलेगा मार्केट में? कहते हैं नहीं नहीं, वो गज्जक वाले को दिया था, मना कर दिया था। अच्छा ठीक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो कलयुग वाले बेचारे दान भी नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल। अच्छा तो फिर भगवान कहते चलो फिर तुम एक ही काम कर लो, चलो तुमसे ध्यान होना नहीं, दान होना नहीं, स्नान भी बेचारे कर नहीं पाते इतना, सर्दियाँ आती है स्नान भी कम हो जाते हैं। ऐसा करो फिर तुम नाम ले लो, चलो नाम ले लोगे? कभी कभी ये है हम कलयुग वालों का हाल। तो इसीलिए नाम ही है बस, यही हमारा सहारा है। अब तो कितने लोगों ने बधवा कॉलेज का नाम सुना है? 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें, 11वीं 12वीं फेल, BA पास करें, है ना? ऐसा नाम सुना है ना आपने? इन नालायकों के लिए खुला है बधवा कॉलेज, क्योंकि इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, यूपी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, कहीं नहीं होता इनका, तो फिर ये बधवा कॉलेज की शरण लेते हैं। तो इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर फेल, कलयुग में पास करें। अच्छा बधवा कॉलेज का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ आइए जी आप यहाँ। और बधवा कॉलेज में क्या पेपर भी आसान आता है, 20 सवाल, कोई 2 करिए। ये मुश्किल है आसान है? बहुत आसान है ये तो। अब अगर कोई ये बोला अरे तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आया भाई, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 2, ये तो बहुत कठिन है, तो अब तू कहाँ जाएगा भाई? तो जो हरे कृष्णा भी ना कर पाए, अरे कभी कभी लोग कीर्तन कर रहे हो तो बोलना पड़ता है बोलिए बोलिए, सब मुंह खोलिए। मुंह नहीं खोलते तो बोलिए ना, मुंह खोलिए ना। अच्छा चुगली करिए, तो भगवान का नाम जबकि इतना आसान है, हरे कृष्णा, कितना आसान है। छाला पड़ा किसी मुंह में? कितना आसान है, फिर भी लोग नहीं लेते, दत्त तेरे की। तो नाम की जो है इतनी महिमा है कि अगर कोई इसकी महिमा को पूरा नहीं भी जानता, इवन देन अगर कोई नाम ले रहा होगा तो भी इसको लाभ पहुंचता है। जैसे विभीषण जब लंका के राजा हो गए, अब रावण की तो हो गई, अब उनके एपिसोड ओवर हो गया, तो विभीषण ने कहा देखो मैं राजा हूँ, अगर आप में से कोई मेरे को पसंद ना करता हो तो जो जाना चाहे फिर जा सकता है, तो जबरदस्ती नहीं है कि मेरे को मेरे राजा को रहना ही पड़ेगा, तो जो जाना चाहे चला जाए। तो सबने कहा नहीं कोई बात नहीं, पहले रावण थे हमारे राजा, अब विभीषण है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन उनमें से एक था जिसका नहीं, मैं रावण का वफादार था, हूँ और रहूंगा। ठीक है भाई, तो फिर चला जाए फिर। अच्छा तो फिर लेकिन अब जाए कैसे जाए जी? क्योंकि जो पुल था उसको ना सिर्फ वानर सेना इस्तेमाल कर सकती थी, जो राक्षस थे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अच्छा फिर कैसे जाएगा ये? तो फिर विभीषण जी ने क्या किया, एक पीपल का पत्ता लिया, उस पर कुछ लिखा और उसको फोल्ड करके दे दिया उसके हाथ में। कहता ठीक है अपने हाथ में रख लिया इसको, तो समुद्र पार करेगा ना, समुद्र तेरे टखने के ऊपर से नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा बस, तेरे एंकल तक रहेगा बस। क्या ठीक है जी? कहता लेकिन इसको खोलना नहीं इसको। कहता ठीक है नहीं खोलूंगा। तो ये चला, चलते 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 आधा समुद्र पार हो गया। वाह कमाल की चीज दी है विभीषण जी, समुद्र पार हो गया आधा भाई ये तो। कहते एक बार देखूं ऐसा दिया क्या? कहते नहीं वो मना किया है, नहीं करता मैं। कहते एक बार देखिए फिर बंद कर दूंगा। अब राक्षस है, मन तो वश में है नहीं, तो खोल दिया उसने, उस पर लिखा था राम। कहता अरे धत तेरे की, ये 2 अक्षर ने ये मचा के रखा है समुद्र के साथ, हो ही नहीं सकता। जैसे उसने बोला हो ही नहीं सकता, समुद्र आया उसको डुबो करके ले गया। अब जब तक इसने नाम को हाथ में लिया हुआ था और ये नहीं जानता, नाम की महिमा नहीं जानता ये, इवन देन ये समुद्र को पार कर रहा है। लेकिन जैसे डाउट किया फिर गया। दूसरा से अगर वो डाउट कर दे, कहता अरे भाई ये तो ज्यादा बताया था भाई, भगवान का नाम ये भी है वो भी, ठीक है इतना भी नहीं है, ये लोग कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए थे ये लोग। तो अगर किसी ने डाउट कर दिया फिर हो गया काम से। तो नाम की महिमा नहीं भी पता होगा, फिर भी अगर कोई हरे कृष्णा करे तो भी लाभ पहुंचता है उसको, ऐसा होता है। हाँ, तो मैं चाहता था कि ये वीडियो हम लोग देखें ताकि थोड़ा हम लोगों को लगे कि नाम जो है, हरि नाम जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं,
वो एक्चुअली उसकी जो महिमा है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब हरि नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि हरि नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, और उन्हीं की शिष्टाष्टकम में ये जो 6th वर्ष जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें वो अपने भाव उस भाव भक्ति में घुस गए हैं और उसकी सिम्टम्स बता रहे हैं। तो हम लोगों के लिए क्या, क्योंकि हम लोग तो अभी अनर्थ निवृत्ति पे ही हैं, है ना। तो क्योंकि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये तो हम लोग कर रहे हैं, श्रद्धा है हमारे, फेथ है, तभी हम लोग यहाँ पर अभी इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है। और खैर टू बी ऑनेस्ट, फेथ भी हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर फेथ हमारी इतनी स्ट्रांग होती तो, और हमें पता है कि सिर्फ ये हरे कृष्णा महामंत्र हम सिर्फ ये हरे कृष्णा महामंत्र अकेला हमारी हर चीज के लिए यूजफुल है, अकेला इज इनफ, है ना, काफी है। सिर्फ ये अकेला हरि नाम हमारे सब चीजों के लिए काफी है। तो हमें इतना ज्यादा जो हम लोग इतनी सारी चीजें करते हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हमारे वो आनंद वाली जो अनुभूति है हमें होने लग जाती पहले से, क्योंकि हमें उस हरि नाम पे विश्वास है, लेकिन पूरा नहीं है तो सही, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। थोड़ा बहुत हमें विश्वास है हरि नाम पे, और थोड़ा बहुत हम लोग ने फील भी करा है, क्योंकि उससे क्लैरिटी आती है। वो जो 2 घंटे जो मेडिटेशन होता है एवरी मॉर्निंग, जपा मेडिटेशन से कहते हैं, उसके बहुत बड़े साइंटिफिक भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्रूव कर रखा है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण साइकोफिजिकल जो बेनिफिट्स हैं, फिजिक पे बेनिफिट, आपकी हेल्थ पे बेनिफिट, आपके सोचने के तरीके पे बेनिफिट, हर तरह जपा मेडिटेशन जिसे कहते हैं। उसके अलावा ये तो हमारा भौतिक वो है बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बेनिफिट है दैट सरपासेस एवरीथिंग। प्रभुपाद कहते हैं कोई एक बार पूरी श्रद्धा के साथ हरे कृष्णा महामंत्र बोल दे तो वो तुरंत उसकी मुक्ति है। किसी ने पूछा आप मुक्ति होने में, लिबरेट होने में कितना टाइम लगता है? उन्होंने बोला 1 सेकंड, लेकिन आपको वो 1 सेकंड वाली वो श्रद्धा चाहिए। तो हमने देखा श्रद्धा है, उसके बाद साधु संग नेक्स्ट स्टेज। थोड़ी सी श्रद्धा आती है तो फिर हम लोग ये कर रहे हैं साधु संग है, और भजन क्रिया जो हम लोग करते ही हैं, भजन वगैरह, अपने चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति, जिस स्टेज में हम लोग सब हैं अभी, एटलीस्ट मैं तो हूँ उसी स्टेज पे ही हूँ। अनर्थ निवृत्ति मतलब अभी हमारे इतने सारे अनर्थास हैं हमारे दिल में, उसको कम करने के लिए हमें चैंटिंग करनी होती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें चैंटिंग में तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा टेस्ट चैंटिंग करने में, क्योंकि चैंटिंग इज नॉट चैंटिंग वो पबजी जैसी फीलिंग नहीं देती है कि पबजी खेल रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट है, वो वाली फीलिंग नहीं है। तो चैंटिंग क्या बोरिंग हो जाती है, और वो बोरिंग हो जाती है तो फिर हम लोग या तो उसको छोड़ देते हैं या इनअटेंटिव चैंटिंग में चले जाते हैं, वो दोनों ही खराब है। तो होता क्या है कि वो जो अनर्थ निवृत्ति हो रही है वो जो सबसे क्रिटिकल स्टेज वही है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आ जाती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब जैसे जैसे हमारी अनर्थास हमारे कम होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इस हरिनाम पे निष्ठा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इस पे निष्ठा बढ़ती रहेगी, जैसे वो निष्ठा एक ऐसी एपिटोम पे पहुंच जाती है, उसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको उस टिपिंग पॉइंट के बाद वो जो है वो रुचि में बन जाती है। और वो जो रुचि है, नाम रुचि, आपको मतलब मजा आने लग जाता है चैंटिंग करने में। अब मजा आने लग जाता है, उसके बाद आप उसको करते रहो तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसको कहते हैं आसक्ति मतलब ये है कि आप लिटरली पूरी दुनिया में आपको कोई कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा सिवाय हरिनाम के। मतलब हरिनाम से ज्यादा कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा आपको, है ना। और फिर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी, जल्दी सुबह उठना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हरिनाम से ज्यादा। तो आसक्ति के बाद अपने आता है भाव, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं आज की। वो जो भाव है वो आसक्ति के बाद शुरू होता है ना। तो अभी तो हम लोग इसलिए इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि इस स्टेज तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी हमें पता है कि हम उस स्टेज पे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैतन्य महाप्रभु इसमें क्या कर रहे हैं, आज कहते हैं कि भगवान मेरे को कब आपके नाम पे इतना टेस्ट आएगा, कब ऐसा होगा मेरे साथ कि मैं जब आपका नाम लूं तो मेरा गला रूंध जाए, है ना, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो दिन कब आएगा भगवान, प्लीज बताओ वो दिन कब आएगा। मतलब वो ये उनको पता है कि ये सिम्टम्स हैं भाव के, और वो कह रहे हैं कि भगवान प्लीज मुझे ये वाला भाव दे दो,
है ना। तो हमारी भी जो प्रेयर होनी चाहिए अभी, वो हमारी प्रेयर क्या होनी चाहिए सबसे पहले कि भगवान प्लीज अभी जो मैं अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में हूं, तो प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए, क्योंकि मैं नहीं इस काबिल हूं कि मैं इस चैंटिंग को कंटिन्यू कर सकूं इस भाव से, इस श्रद्धा से, तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ के चलिए। तो हमें क्या, हमें जेन्युइनली प्रे करना पड़ेगा। और हमें कैसे, और अगर जेन्युइनली प्रे करना है, आप जेन्युइनली तभी प्रे करोगे जब आपको सीरियसनेस पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम है किसी का, और उसको पता है बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके भगवान से जो प्रार्थना होती है वो बहुत ही वैसी होती है कि भगवान प्लीज 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 कल बचा लेना, ऐसे, है ना। तो जितनी ज्यादा आपकी सीरियसनेस है उतनी ज्यादा आपकी प्रेयर स्ट्रांग होगी, है ना। और वो जो जितनी ज्यादा जो आपकी जो सीरियसनेस है वो कहाँ से आएगी, वो सीरियसनेस तब आएगी जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। मतलब बोर्ड का एग्जाम है, आपने बहुत कोशिश करी यार, ये यार मैथ्स कुछ समझ में नहीं आ रही है, बहुत कोशिश करी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए मैथ्स से, और आपको पता है सीरियस कितना सीरियस है बोर्ड का एग्जाम, तो फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण सीरियसनेस पता है, तो हम जाके प्रे करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो लाइफ के साथ हम लोगों को सेम यही करना है। पहले तो हमें जो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन हमें जो रोज दिखता है, उसमें हम लोग पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उसमें पर्दा नहीं डालें। फ्रस्ट्रेशन है तो है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग फ्रस्ट्रेट होके वी स्टार्ट गेटिंग एंग्री, और वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी सीरियसनेस के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी कि आप जेन्युइनली प्रे कर सकते हैं। जब तक आपको सीरियसनेस ही नहीं पता है कि इस वर्ल्ड में रहने का क्या मतलब है, तो कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद हम लोग तो प्रे कैसे करें, प्रे इमोशन किसी का ओके, सो प्रे कैसे करें, प्रेयर हैज इमोशन दैट वी नीड। प्रेयर के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो किसको प्रे करना है, ठीक है, हम किस से प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किससे प्रे कर सकते हैं, 3 चीजें होती है, किससे प्रे करना है, क्या किससे मांगना है, क्या मांगना है और कैसे मांगना है। किससे मांगना है, क्या मांगना है और कैसे मांगना है। सो किससे मांगना है पहले वो देखते हैं। पहले हम किससे मांगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें अगर कोई किसी चीज की जरूरत है तो हम किससे मांगे। वो अगर हमारे पास नहीं है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किससे मांगे। तो अगर हमें पता है हमारे पास हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, अगर हमें अपनी भक्ति को इंक्रीज करना है, तो हम किससे मांगे, किसके पास जाएं, भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान के पास जाएं। सबसे पहले हम लोग कृष्ण भगवान के पास जाएं। और किसके पास जा सकते हैं, हमारे आचार्य है ना, आचार्य से भी प्रे कर सकते हैं, है ना, गुरु से प्रे कर सकते हैं। अभी मेरी वाइफ ने देखा कि मैंने ना प्रभुपाद की फोटो रख रखी है, और जब मैं चैंटिंग कर रहा था फोटो रख के, तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने फोटो क्यों रख रखी है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई क्योंकि मैं इनसे प्रे करता हूँ कि मेरी ना चैंटिंग थोड़ी सी ठीक हो। तो बिकॉज वो क्रिश्चियन है, उसने मुझे बोला कि तुम ये गलत है, तुम्हें भगवान के अलावा, गॉड के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए, किसी से प्रे नहीं कर सकते तुम। तो मेरी इच्छा तो हुई थोड़ी सी बहस करूं, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि ओके ठीक है, दैट्स फाइन। कहने का मतलब यह है कि लोगों को ये नहीं पता है कि जिन गुरुओं को, जैसे शिला प्रभुपाद हुए या और भी गुरुज हैं इस्कॉन में या बाहर भी, ये जो गुरु हैं ये भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र युक्त तथा भावयता एव साध्वी। साक्षात धरित्वेन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो गुरु है वो उनको हमें साक्षात भगवान मानना चाहिए। मतलब हमें भगवान में और गुरु में डिफरेंस नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और गुरु को एक आम इंसान कभी नहीं समझना चाहिए। गुरु जो है वो आम इंसान है ही नहीं। और ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत। मैंने इस चीज से इतना स्ट्रगल करा है कि हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग, किसी एक पर्सन पे आप कितना विश्वास कैसे कर सकते हो। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है गुरु का मतलब भगवान। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद गुरु तुम हमें बोलते थे कि कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता, तो और फिर आप बोलते हो कि गुरु जो है वो भगवान के समान है। तो प्रभुपाद ने बोला
कि यस, आपको गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए, लेकिन अगर गुरु अपने आप को भगवान समझने लग जाए तो वो बेवकूफ है। तो क्या बोलता है, ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। प्रभुपाद बहुत बहुत स्ट्रांग थे इस मामले में। तो उन्होंने बोला द पर्सन हु इज द गुरु हु इज एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ एज गॉड इज नॉट गॉड, ही इज एक्चुअली डॉग, बट अ डिसाइपल शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज गुरु एज गॉड। गुरु को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। तो ये बात किसी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। शास्त्रों में जिसके नहीं लिखा हो, जैसे बाइबल में नहीं लिखा है कि आप किसी भी उनसे प्रे करो, जो उनके जो वो हैं डिसाइपल्स हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है तो हम लोग करते हैं। तो किससे प्रे कर सकते हैं? भगवान से, ठीक है, आचार्यों से, है ना। हरिदास ठाकुर की जो अभी अभिवास दिवस था, है ना, तो उसमें हम लोगों ने कोशिश करी ज्यादा राउंड करने के, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हरिदास ठाकुर से हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिले, थोड़ा सा वो हमारी भक्ति में मदद कर सके। तो हम उनसे भी प्रे करा, है ना, क्योंकि वो भी भगवान के वो हैं, पार्षद हैं ना। और किससे प्रे कर सकते हैं हम? और हम प्रे कर सकते हैं हरिनाम। हरिनाम जो है, हरिनाम है वो एक व्यक्ति है, कहते हैं हरिनाम प्रभु जिसे कहते हैं। तो ये जो चैंटिंग बीड्स है, इसके अंदर जो माला है, ये एक वस्तु नहीं है, ये एक पर्सन है। और इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हरिनाम, जो हरिनाम निकल रहा है वो भी एक पर्सन है। और उस हरिनाम जो है उसमें और भगवान राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग हरिनाम से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब आप चैंटिंग करने बैठे हैं तो आप भगवान से, ऑब्वियसली आप लोग राधा कृष्णा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और नरसिम्हा भगवान से प्रे करते ही हैं, जो पीछे अर्चुग्रह की वो लगी हैं। लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हरिनाम से भी प्रार्थना कर सकते हैं। हरिनाम प्रभु, मुझे प्लीज आपकी सेवा करनी है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं अगले 2 घंटे बैठ के आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मेरा मन वश में नहीं है, तो प्लीज आप मेरी मदद करें, है ना। तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। तो पहला हो गया कि किससे प्रे करें, दूसरा है क्या प्रे करें। तो हम लोगों के पास प्रे करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। पहली चीज है भाई अच्छी नौकरी, है ना, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड, या अच्छे बच्चे, है ना, मेरे बच्चे मेरे बात मानना शुरू कर दें। काफी सारी चीजें हैं, जो लिस्ट हमारी इतनी लंबी है, नया घर बन जाए, एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाए, यू नो, ये सब चीजें सारी भौतिक चीजें हैं। और आध्यात्मिक चीजें भी कैसी कि भगवान बस ऐसा कुछ कर दो कि मैं मंदिर को ज्यादा दान दे सकूं। मतलब कैसे आप ज्यादा दान दोगे? जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकम बढ़ जाएगी तो दान भी हो जाएगा, लेकिन हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो कई बार क्या तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम क्या मांगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? भगवत धाम में जाने के लिए कृष्ण प्रेम, है ना। तो हमें पता है हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो हम लोग कृष्ण प्रेम मांग सकते हैं। कृष्ण प्रेम किससे आता है? हरिनाम से। और हरिनाम, क्योंकि हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और हरिनाम में हमारी रुचि नहीं है, तो हम लोग क्या मांग सकते हैं? भगवान आप हमारी हरिनाम में रुचि बढ़ा दो, धीरे 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 करके हमारी रुचि बढ़ा दो। जैसे जिसको पीलिया हो जाता है, उसको गन्ने का जूस पिलाओ तो उसको फीका लगता है, उसमें मिठास ही नहीं होती, जबकि गन्ना पूरा पूरा शुगर से बना हुआ है ना, शुगर केन। तो गन्ने का जूस जैसे पीलिया वाले को पीता है तो उसको टेस्ट नहीं आता है, वैसे ही हमें भी क्योंकि हमारे इतनी बीमारी, इतनी जन्मों जन्मों की बीमारियां हैं ना अंदर, जिसके कारण हमें वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है हरि नाम का, क्योंकि इतने अनर्थास भरे हुए हैं इतने जन्मों के। तो हम लोग, तो पीलिया का मरीज होता है, उसको जो जूस उसका जो इलाज है वो गन्ने का जूस ही है। तो वो गन्ने का जूस पीता रहता है और उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। जैसे जैसे वो पीता रहता है, जैसे जैसे उसका पीलिया खत्म होते जाता है, वैसे वैसे उसका टेस्ट बढ़ता रहता है। और जब उसको पूरा टेस्ट आने लग जाता है, दैट मीन्स आपका पीलिया चला गया। लेकिन अगर वो एक सिप ले और बोले ये तो फीका है तो मेरे को पीना नहीं है गन्ने का जूस, तो उसका वो ठीक नहीं होगा। वैसे ही हमारे साथ जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमने छोड़ दी तो फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने इलाज ही बंद कर दिया तो क्या करें। और काफी सारे लोग हैं ऐसे जिनसे चैंटिंग छूट गई है। और चैंटिंग किसी की अगर छूट गई, किसी के राउंड चल रहे हैं, सपोज 16 समथिंग, अगर उसके राउंड कम हो रहे हैं
तो इस बात की गारंटी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध हुआ है, क्योंकि एक बार महामंत्रा ने आपको पकड़ लिया तो आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी चैंटिंग कम हो रही है और क्वालिटी गिरती जा रही है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैष्णव अपराध या नाम अपराध हो रहे हैं, है ना। नाम अपराध के बारे में हमने बहुत डिस्कस करा था 3-4 क्लासेस में, एक्चुअली 10 क्लास में आई थिंक। लेकिन नाम अपराध हो रहा है, कोई ना कोई वैष्णव अपराध कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके कारण आपकी चैंटिंग, और कई बार क्या होता है कि पूरी चैंटिंग चली जाती है, पूरे दिन चैंटिंग ही नहीं करी। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बड़ा भी नहीं हुआ है और फिर भी चैंटिंग नहीं हुई पूरे दिन, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वो श्रद्धा टूट रही है। वो क्यों टूट रही है? क्योंकि आपने क्या करा, कहीं ना कोई अपराध करा। तो जैसे ही आपने वो जूस का गिलास उस आपको पी लिया हुआ है और आपने वो जूस का गिलास रख दिया, बोले अब तो नहीं पीना मेरे को, और आपने उसको पीना बंद कर दिया, तो गारंटीड ये पी लिया आपको लेके जाएगा आपके साथ, अपने साथ, है ना। तो पहला हमने, और तो हमें क्या प्रे करना चाहिए? तो हमें क्या प्रे करना चाहिए? हमें प्रे करना चाहिए टेस्ट फॉर चैंटिंग। भगवान प्लीज मुझे हरि नाम में टेस्ट दे दो। दूसरा हमें प्रे करना चाहिए कि भगवान प्लीज मुझे डिवोटी एसोसिएशन से दूर मत करना, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जो संगति है ना उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि संगति क्या करती है, शायद मैं मम्मी से बात कर रहा था 3-4 दिन पहले या लास्ट वीक। संगति क्या होती है कि अंगीठी होती है, अंगीठी में कोयले खूब सारे हैं, आग जल रही है और आप आराम से आग ताप रहे हो और सर्दी में बैठ के, उसमें से वो 2-3 घंटे 4-5 घंटे चलेगी, लेकिन उसमें से एक कोयला निकाल के साइड में रख दो, वो 5 मिनट के अंदर फुस हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये डिवोटी एसोसिएशन, वो जो आग है अंगीठी में, वो भक्ति है ना। और वो भक्ति की आग आपको, और भक्ति की गर्माहट आप में तब तक रहेगी जब तक आप डिवोटी एसोसिएशन में रहोगे। जैसे ही आप बाहर आए आप खत्म। तो आप, और कई बार हम लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं डिवोटी एसोसिएशन में रहने की, और अगर कोशिश कर भी रहे हैं फिर भी नहीं आ रही है, तो प्लीज आस्क भगवान प्लीज मेरे को डिवोटी एसोसिएशन, प्लीज मेरे से वो मत लो। फिर हम लोग ये मान सकते हैं भगवान प्लीज मेरे से कोई अपराध, कोई ऑफेंस ना हो, है ना, मेरे को प्लीज बख्श दें, और मेरे को बताएं, मेरे को रियलाइज कराएं कि मेरे से क्या अपराध हुआ है, और मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूं, और मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, प्लीज मेरी मदद करो। तो पहला हमने देखा कि किससे मांगना चाहिए, तो भगवान से मांग सकते हैं, आचार्य से मांग सकते हैं, अपने एक्चुअली आचार्यों से, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये तो मैं बताने भूल गया, क्योंकि जो पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो हम कई बार उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे सबसे बड़ा कहते हैं कि ट्रम्प का इक्का जो उन्होंने यूज करा था कृष्ण जी ने युद्ध में, तो उन्होंने क्या यूज करा, युधिष्ठिर ने, कि जैसे युद्ध शुरू होने वाला था तो सबसे पहले जाके सब लोगों के पांव छुए, है ना, ऑपोजिट साइड में जाके सबके पांव छू रहे हैं, और आशीर्वाद क्या मिल रहा है, विजय भाव। तो हमें अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो आपकी भक्ति में बहुत आगे जाएगा। और कोई अगर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहा है तो आप उनसे मांग सकते हो कि देखो मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद की जगह आप भक्त बने रहो, ये वाला आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं भक्त रहूंगा तो मैं सुखी रहूंगा। भले ही भौतिक जगत के हिसाब से उसे सुख ना कहें लोग, लेकिन मेरे को पता है कि मुझे वही चाहिए, है ना। तो हम किससे मांग सकते हैं? भगवान से, प्रीवियस आचार्य से, अपने बड़ों से, और हरि नाम प्रभु से। और क्या मांग सकते हैं? भगवान टेस्ट, चैंटिंग के लिए प्लीज मेरे को टेस्ट दे दो, मेरी डिवोटी एसोसिएशन प्लीज बना के रखो, मुझे दो, और मेरे ऑफेंसेस हटाओ। और कैसे मांगना चाहिए, जो थर्ड पॉइंट है। कैसे मांगना चाहिए? फोर्सफुली, है ना। कैसे कि अगर आपको प्रे नहीं, आपसे नहीं, कई बार होता है कि यार हमें पता ही नहीं कि यार मेरे को चाहिए, लेकिन मैं कैसे मांगू, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है मांगने के, है ना। तो आप जो श्रीमद् भागवतम में काफी सारी प्रेयर्स है ना, वो रीड कर सकते हो, है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए चिल्लाता है ना, वैसे चिल्ला के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और
प्रेयर जो होती है वो तब तक नहीं आप कर सकते जब तक आपको अपने कर्ता होने पे बहुत घमंड है, डूअरशिप जिसे कहते हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं यार मैं तो नहीं, मैं प्रार्थना में प्रेयर वेयर नहीं करता, मतलब मैं कुछ नहीं मांगता भगवान से। तो हो सकता है नहीं, दैट्स इट कुड बी लाइक यू नो, और ऐसा हो सकता है कि वो लोग बहुत ही एलिवेटेड हो और कुछ भी नहीं मांग रहे हो भगवान से, और जो भगवान दे रहा है उनको पूरी श्रद्धा से ले रहे। लेकिन आम तौर पे जो लोग बोलते हैं ना भगवान से मैं कुछ नहीं मांगता, उनको अपने कर्ता होने पे बहुत घमंड है। उनको लगता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी से सब कुछ पा सकता हूं, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर आपको रियल में प्रेयर करनी है तो जो हमने थर्ड वर्स पढ़ा था, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना माने देना कीर्तिने सदा हरि। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself as lower than the straw on the street, and should be ready to offer all and more tolerant than a tree, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name constantly. तो हमें वो ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता लानी पड़ेगी। प्रे करने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यार मैं दास हूं। तो ह्यूमिलिटी कहाँ आती है? दासत्व में। Instead of thinking what is in it for me, think about how can I serve. मैं कैसे सेवा कर सकूं? किसकी सेवा? हर किसी की सेवा। ऐसा नहीं सिर्फ डिवोटी की सेवा, हर किसी की सेवा, है ना। तो prayers can only come naturally when you have humility. वरना तो फोर्सफुली, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे को तो कई बार समझ में नहीं आता मैं कैसे प्रे करूं। तो मैं कई बार उसमें से श्रीमद् भागवतम की कुछ प्रेयर्स पढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को खुद को इतना समझ में नहीं आता, तो कई बार फोर्सफुली भी करना पड़ता है। उसके बाद प्रेयर करना आसान तब हो जाता है जब हमें समझ में आ जाता है कि हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग भगवान की खुशी, वी आर नॉट द एंजॉयर, गॉड इज द ओनली एंजॉयर, है ना। और वही करता है और वही भरता है ना, करते भी वही है, और जो इंजॉयमेंट है वो भी उन्हीं का ही है। और मैं कौन हूं? मैं उनका दास हूं, जो मैं उनकी इंजॉयमेंट को फैसिलिटेट करता हूं, है ना। तो ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। कैसे? कि अगर हम सच में प्रे करते रहें तो हम में विनम्रता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि पहले तो क्या हुआ, घमंड है तो प्रे नहीं करना है, लेकिन फिर भी चलो किसी ने बता दिया जबरदस्ती, यार प्रे करो, यार प्रे करो, तो आपने यार जबरदस्ती किसी और की प्रे लेके प्रे करना शुरू कर दिया, या फिर मन से बना के कुछ भी मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी प्रे कर रहे हैं, तो फिर भी मांग रहे हैं भगवान से। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो प्रेयर है वो भी आपको विनम्र बना देगी। इसी तरीके से जो चैंटिंग है, चैंटिंग में आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ाती है, आपकी विनम्रता बढ़ाएगी, है ना। और विनम्रता जो है वो आपकी चैंटिंग को अच्छा करेगी। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आई थिंक इसको पूरक ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ना और ये ध्यान रखने का है कि हम लोग कोई ऐसा अपराध ना करें। और जो सबसे गंदा अपराध जो होता है वो ऑब्वियसली वैष्णव अपराध होता है। तो और उसमें क्या होता है कि हम इतने ज्यादा भौतिकवादी बन जाते हैं एक स्टेज पे कि हमें समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। इसी उसमें एक छोटा सा लीला थी। एंड आई थिंक बृहस्पति जो हैं वो इंद्र भगवान, जो डेमीगॉड्स हैं उनके गुरु हैं। तो एक बार क्या हुआ, बृहस्पति ने अपने जो उनकी जो माला थी उनको दी गई थी, वो उन्होंने उनको दे दी इंद्र को, है ना, जैसे महाप्रसाद की माला देते ना वैसे दे दी। तो इंद्र ने क्या करा, वो माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी, है ना। ऐसे ही मतलब उनके दिमाग में कुछ आया नहीं, समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसे पहना दी और बात कर रहे थे। ऐरावत ने वो माला ली, उस पे खड़ा हो गया, है ना, उस पे अब हाथी है, उसने उसको अपने पैर से दबा दिए। तो उनको श्राप मिल गया कि भाई तुम ना, तुम्हारी जो मेंटालिटी है वो उसकी जैसी है, सुअर के जैसी। तो उनको मृत्यु लोक में सुअर बनना पड़ा। अब क्या हुआ कि काफी टाइम हो गया, इंद्र महाराज जो थे वो यहाँ भौतिक जगत में सुअर बने, और फिर उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, काफी टाइम बीत गया। तो ब्रह्मा जी उनको लेने गए, भाई ठीक है, हो गया यार, हो गई, गलती हो गई, तुम सुअर बन गए हो, ये वो, तुम चलो
वापस चलो, है ना, तुम्हारा जो वो है टाइम है, जो श्राप का टाइम है वो खत्म हो गया, तुम वापस चलो। तो इंद्र भगवान बोल रहा हूँ, इंद्र जी जो थे वो स्वर्ग के राजा थे, वो नीचे वहां पिग की लाइफ में क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, देखो इतना अच्छा खाना है यहाँ पर, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। तो ब्रह्मा जी वहां पर बैठ के सोचने लग गए कि देखो, देवे आया गुणमयी मोह माया दुरत्या, मतलब जो माया है भगवान की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्वर्गलोक जाने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उसकी कंडीशन एक सुअर की है। और वो अब हम ये लीला सुनते हैं, हमें लगता है कि यार कितनी बड़ी बेवकूफी यार, अब सुअर की जिंदगी से, सुअर की जिंदगी कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है कि नहीं है, सबको पता है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी भी वही मेंटेलिटी है। हमें भगवत धाम जाने के लिए पासपोर्ट मिल गया, स्टैंप लग गया, वीजा लग गया, सब कुछ हो गया, और बोला फ्लाइट में कैसे चढ़ेंगे आप, इसकी माला करते रहो, आप फ्लाइट में बैठ जाओगे। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता इसे, क्यों, अरे यार मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा जॉब है, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते ये दिमाग में रखना चाहिए, हम उस इंद्र की तरह ना बन जाएं जो ये ब्रह्मा जी को बोल रहा है कि मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूं, और मैं ये मल खा रहा हूं और मेरे को इसमें मजा आ रहा है। आप सोचो, उस इंद्र जी को हम बेवकूफ समझते हैं, लेकिन हमारी वही कंडीशन है, वही कंडीशन है। द्विपाद पशु जिसे कहते हैं, द्विपाद पशु मतलब 2 लेगेड एनिमल, क्योंकि यू नो हमारे जो कार्यकलाप के तरीके हैं वो सेम है जानवरों जैसे। हमारे पास एक ही डिफरेंस है कि हम वी कैन रियलाइज गॉड, दैट्स द ओनली डिफरेंस, और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारी वही कंडीशन हो गई इंद्र जैसी। सो इस पास टाइम से हमें ये पता चलता है कि ये जो माया है इतनी स्ट्रांग है, हमें इतने इल्यूजन्स में बांध के रखती है, लेकिन हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये माला करने के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दो। जैसे मेरी वाइफ ने मुझे मना कर दिया था, बोले कि तुम फैमिली जब टाइम होता है तब तुम्हारी माला करते रहते हो, हम लोगों को टाइम नहीं देते हो। तो थोड़ी मेरे साथ वो हो गया, और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी माला उसके सुबह उठने से पहले खत्म कर दूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं माला नहीं करूं, है ना। तो मैंने स्वर्ण कृष्ण प्रभु ने मुझे बोला साफ साफ कि तुम छोड़ो, तुम अपना, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर वो तुम्हें बोल रही है कि तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो तो तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने माला ऐसे टाइम पे शुरू कर दी जब वो उठती नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, मैं उसके सामने कभी भी माला नहीं करता, है ना। तो हमें माला को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए जैसे ये हमारा पासपोर्ट है। दिस इज अ पासपोर्ट फॉर अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है, हमारे घर जाने का, हमारे घर जाने का पासपोर्ट है वो, हमारा जो असली घर है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यार क्या करें। अब क्या इसमें धीरज भी रखना पड़ता है कि कई बार क्या हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने पकड़ लिया है माला, दैट्स इट, आज मैं तभी उठूंगा जब मैं प्योर डिवोटी बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ क्या है इसका? मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को घड़े से पानी सींचने लगे तो फल तो तभी आएगा ना जब उसका मौसम आएगा, ऋतु जो आएगी उसी से आएगा फल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना।
हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब क्या है कि अभी हम लोगों के इम्पोर्टेंट चीज क्या है, टू हाउ, कैसे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। और चैंटिंग जो हमारी हो रही है, हम सब लोग कर रहे हैं चैंटिंग, और पुरुषोत्तम माह में तो ज्यादा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग चैंटिंग में क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि चैंटिंग को कैसे इंप्रूव करा जाए। तो मैं अभी वापस एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ, we'll look at that video and then we'll start again. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस प्रभु जी। Hare Krishna. Hope you now know how not to chant. If you liked our videos, please hit like button and comment below. So
तो हम लोग ने देखा, हम लोग वी आर ऑल culprit of all of this, you know, or some of it. लेकिन अब क्या है ना, अभी क्योंकि जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता है, लेकिन अब पता है तो क्या करा जाए। अब जैसे मेरा भतीजा है इंडिया में, आई थिंक वो 9 साल का या 8 साल का ही है, शायद 8 भी नहीं 7 साल का। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि चाचू आप बताओ ये जो चैंटिंग है वो कैसे मतलब क्या मैं कृष्णा की मूवी देखते देखते चैंटिंग कर सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने मुझसे। तो मैंने उसको बोला कि नहीं कर सकते। और फिर मैंने उसको 1-2 दिन पहले कोई एग्जांपल दिया था कि अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपको पूरा अटेंशन देना चाहिए। चैंटिंग का मतलब है कि आपसे भगवान कृष्ण खुद ही मिलने आ रहे हैं। सपोज सलमान खान आपसे मिलने आता है और सलमान खान आके बोलता है और आता है, अंदर बैठाते हो आप उसको, काउच पे बिठाते हो और आप वहां पर अपने मोबाइल निकाल के अपना गेम खेलने लग जाते हो, तो उसको कैसा लगेगा भाई, आप वो इतना बड़ा एक्टर है, वो आया आपके पास बैठा है और तो उसने बोला हाँ बात तो सही है। तो बोले मैंने उसको बताया कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो ये आपका अपॉइंटमेंट है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और उस अपॉइंटमेंट में अगर आपने मोबाइल देखा, इधर देखा उधर देखा या ये देखा वो देखा, इसका मतलब कि आप बुला तो रहे भगवान को, भगवान बोल रहे हरे कृष्णा, तो कृष्णा बोलते हैं हाँ, और फिर हम कहते हैं नहीं अभी जाओ, अभी मैं पहले थोड़ा सा कुछ देख लेता हूँ या बुक पढ़ लेता हूँ या फिर व्हाट्सएप देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ। तो फिर भगवान, फिर हम बोलते हैं हरे कृष्णा, फिर वापस आ जाते हैं, वो बोले हाँ, फिर हम बोलते हैं नहीं अभी जाओ, हम उनको अटेंशन ही नहीं देते। तो फिर जब उसने मुझसे दोबारा पूछा कि मैं टीवी देखते देखते चैंटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने उसको बोला नहीं। तो उसने खुद ही बोले हाँ जी चाचू, ये तो वही बात हो गई, सपोज सलमान खान हमारे घर में आए और मैं उसको काउच पे बिठा के टीवी पे उसकी मूवी देखने लग जाऊं और उससे बात ही नहीं करूं, तो उसको बुरा लगेगा ना। मैंने कहा हाँ। तो इतना छोटे बच्चे को ये बात समझ में आ गई, तो मेरे को लगा कि यार ये उसको तो समझ में आती है, लेकिन शायद मेरे को भी उतनी समझ में नहीं आती जितनी उसको समझ में आई। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कैसे हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें चैंटिंग शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। सो हाउ टू गेन टेस्ट फॉर गुड चैंटिंग, है ना, कैसे हाउ टू गेन टेस्ट। तो उसमें क्या था, टिप्स फॉर गुड चैंटिंग क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान रखना कि हमें हमेशा पंच तत्व जो महामंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, अगर ये मंत्र आप करे बिना चैंटिंग कर रहे हो तो क्या होगा कि वो जो नाम अपराध होंगे, मतलब इनअटेंटिव चैंटिंग के कारण जो नाम अपराध हो सकते हैं, उससे आपको आपका जपा इम्पैक्ट होगा। कई लोग बोलते हैं हम चैतन्य महाप्रभु से नहीं इन्वोक करेंगे, हम डायरेक्ट भगवान से मिलना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल है ना। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की मर्सी शुरू में लेते हैं, उनसे और का आशीर्वाद शुरू में लेके फिर चैंटिंग स्टार्ट करते हैं हर राउंड को, तो उससे क्या होता है, हमारी जो हमारे अनर्थाज हो रहे हैं, जो हमारे ऑफेंसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो ऑफेंसेस है ना, वो चैतन्य महाप्रभु एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मर्सीफुल है ना, वो एक्चुअली पंच तत्व खुद ही पूरे। और दूसरा क्या है, एक और तरीका है चैंटिंग इंप्रूव करने का, चैंटिंग को टेस्ट लाने का, सॉरी नॉट इंप्रूव, चैंटिंग का टेस्ट लाने का। एक तो है पूरे दिन, लाइक अगर आप खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, यानी गाड़ी की तरफ जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो मुंह से बोलते रहो हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितना ज्यादा आप ये मंत्र अपने मुंह से बोलोगे, उतना आपका जो अटैचमेंट इस मंत्र से बढ़ता जाएगा और टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा क्या तरीका है टेस्ट लाने का, कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के या तो अपनी 16 राउंड खत्म करो, या फिर मैक्सिमम राउंड सुबह ही खत्म करो, एंड रात के लिए कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट है डिवोटीज को क्रिटिसाइज नहीं करना। और डिवोटीज कौन है, हमने क्या देखा था, हर कोई डिवोटी है, जिसने हरे कृष्ण महामंत्र एक बार भी बोला है वो भी डिवोटी है। तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, और क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज तब करते हैं जब हमें लगता है हम उनसे ज्यादा बेटर है, तो हमारी प्राइड आ जाती है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को नीचे दिखाने के लिए फिर
तिकड़म लगाने जाते हैं, फिर एनवी बन जाता है, वो जो प्राइड होता है वो एनवी बन जाता है, मतलब हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, हमें उसके बाद क्या करना चाहिए कि कर्टेसी जपा जो हमने अभी देखा, इसको अवॉइड करना चाहिए। और कैसे चैंटिंग करनी चाहिए, एक मंत्र अपने, जैसे हमारे पास टारगेट होता है 16 राउंड करने का, तो जैसे ही 16 राउंड दिमाग में आता है पहले ही हम में थार जाते हैं, अरे यार 16 तो कैसे जाएंगे यार, नहीं, एक मंत्र, मुझे सिर्फ एक ही मंत्र करना है। जैसे मेरा टारगेट है हर राउंड पे मैं 3 बार सिर्फ हरे जो साउंड है उसको सुनता हूँ। मेरा टारगेट ये है, जब मैं पहला बोलता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दूसरा हरे कृष्ण, और 3 बार करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चौथा भी हो जाएगा। फिर आप एक मंत्र पे एक बार में कॉन्सेंट्रेट करो और ये मन में सोचो कि ये मेरा एक ही मंत्र करूंगा मैं आज, सिर्फ यही एक मंत्र मेरे को सुनना है और बाकी मेरे को कोई मंत्र नहीं सुनना है। ये जो मैं मंत्र अभी जिस बीट पे, जिस मनके पे मेरा उंगली है, अभी अंगूठा है, बस वही मन का मैं अच्छे से करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो ऐसे ऐसे करके मन को बहलाना चाहिए, बस एक, जैसे माँ बच्चे को कैसे करती है, बेटा एक चम्मच और, एक चम्मच और, अरे बस ये लास्ट चम्मच, 100% ये लास्ट चम्मच, और खिला दिया। फिर बच्चा भागा 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 वापस आया, बच्चे ये लास्ट, बच्चे ये लास्ट लास्ट लास्ट। वैसे ही हमारे मन को ये लास्ट लास्ट करके, लास्ट मन का है, ये लास्ट मन का है, ये बहुत हेल्पफुल है। अब हम क्लास को एक्चुअली क्या टाइम भी हो गया है, मेरे को शायद एक चीज और कवर करनी थी। इसमें क्या है कि अब एक्चुअली क्या, हाँ, अब हम लोग क्या है, हम लोग इस वक्त हैप्पीनेस हर जगह ढूंढ रहे हैं, सिवाय भगवान श्री कृष्ण के, हर जगह हैप्पीनेस ढूंढने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर हमें, फिर हम लोगों ने क्या, किसी ने हमें बताया कि चलो चलो ये पकड़ लो, चैंटिंग पकड़ लो, तो चैंटिंग पकड़ ली। अब चैंटिंग पकड़ी, चैंटिंग में भी मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, चैंटिंग में भी मजा नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, चैंटिंग में तो मजा आ ही नहीं रहा है, वहां दुनिया ने हमें बहुत लातें मारी हुई है, तो हम लोग ने चैंटिंग पकड़ी है और चैंटिंग में हमें मजा आ नहीं रहा है, तो हमें क्या लगता है कि यार इसमें भी मजा नहीं है। तो फिर मेरे को क्या हालत क्या जाती है, धोबी का कुत्ता होता है ना घर का ना घाट का, मतलब इन द सेंस कि वहां कहते हैं ना, माया मिले ना राम, है ना, दोनों तरफ से हमारा गया, या तो माया में पूरा रह लेते या फिर भक्ति में पूरा रह लेते, लेकिन ऐसी हालत हो गई है कि ये चैंट, हमें पता है माया में नहीं रहना है, माया ने बहुत मारा है ना, माया ने मारा तो हमने चैंटिंग पकड़ ली, अब चैंटिंग में भी टेस्ट नहीं आ रहा तो कहाँ जाए। इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, ये बहुत क्षणिक है, क्षणिक मतलब इट्स वेरी मोमेंट, इट्स वेरी बहुत मोमेंट, स्मॉल मोमेंट के लिए है हमारे पास, है ना। अब इसके हम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ यहाँ पर उन चीजों में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, हमारी एनर्जी जो परमानेंट है ना। जैसे कि अगर आपको किराए के घर में रहना है तो किराए के घर में आप कैसा भी है, किराए का घर है छोटा से, मतलब टेम्पररी, कहीं जैसे होटल में जाते हैं अपन, होटल में हम लोगों को ज्यादा वो नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन अगर हमें अपना घर बनाना है तो हम अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये घर परमानेंट है, हमेशा रहेगा हमारे साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा जो पृथ्वी है, जो हमारा जो जीवन है, ये परमानेंट नहीं है, तो टेम्पररी है। तो इसकी एक छोटी सी लीला है कि एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव ने सोचा कि, क्योंकि इंद्रदेव आपको पता है मोड ऑफ उनका पैशन जो है रजोगुण बहुत ज्यादा है, तो उनको लगा कि यार उनको अपने स्वर्ग में और उसको स्वर्ग को और रेनोवेट करवाना है। अब उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी आए, बोले हाँ क्या करना है, तो उन्होंने बोला ये यहाँ ये बनाना, यहाँ ये बनाना, खूब सारी चीजें बोल दी, बहुत सारी चीजें बताई उनको। तो विश्वकर्मा जी ने बोला हाँ ठीक है, बनाते हैं। अब वो जैसे ही विश्वकर्मा जी कुछ खत्म करें, वो इंद्रदेव आए, उनको बोले अरे ये और बना दो, ये और बना दो। तो इतना परेशान हो गए, वो घर ही नहीं जा पा रहे थे बेचारे। तो उन्होंने क्या करा, आंखें बंद करी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी यार ये कहाँ फंसा दिया मेरे को, मैं देवताओं के लिए, मैं इंजीनियर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे को तुम लोग मेरा फायदा उठाओगे। तो ब्रह्मा जी तो कुछ कर नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करी, विष्णु जी से बात करी कि भाई प्लीज हेल्प करो इधर। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है। तो विष्णु जी वहां गए और उन्होंने क्या एक थोड़ा सा वो करा कि एक रोमासा मुनि है, रोमासा मुनि को विष्णु जी ने
बुलाया वहां पर इंद्रदेव के वहां पर। तो इंद्रदेव जी वहां खड़े हैं, तो यहाँ विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने प्रणाम करा है विष्णु जी को। विष्णु जी ना मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। और वो ना जो रोमासा मुनि थे उनसे बात करने लगे, और ऐसे बात कर रहे थे ताकि इंद्र को सारी बातें सुने। तो क्या बोला उन्होंने पूछा रोमासा मुनि को, और रोमासा मुनि आए, उनके हाथ में छतरी थी। तो उन्होंने पूछा कि अरे मुनिवर, ये आपके जो उनके जो रोमासा मुनि थे, उनके चेस्ट पे जो बाल होते हैं ना, उसमें से एक पैच था, उसमें कोई बाल नहीं थे। एक पैच था जहां पर कोई बाल नहीं थे, बाकी सब जगह खूब सारे बाल थे। तो उन्होंने पूछा रोमासा मुनिवर, ये क्या है आपके पैच, कैसे है आपके इसमें? बोले कि ये पैच वो बाल जड़ते हैं ना, वो मेरा क्या है कि मेरे को ये बोला गया है कि जब हर बार जब एक इंद्र मरेगा तो मेरा एक बाल टूट जाएगा। तो और जब ये सारे बाल चले जाएंगे, मेरे चेस्ट पे जितने भी बाल हैं सारे चले जाएंगे, तो मैं ये देह छोड़ के वैकुंठ चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला अरे वाह, और ये छतरी क्यों है? बोले छतरी नहीं है, ये तो मेरा घर है। बोले इस घर में रहते हो? बोले हाँ, क्योंकि ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है ये तो क्षणिक है ना, इसके लिए परमानेंट अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है, मेरी छतरी काफी है। तो ये जब इंद्रदेव ने सुना, तो उसको लगा कि यार मेरी जो पूरी जीवन है उनके एक बाल के बराबर है। मतलब एक बाल झड़ेगा और इतने सारे बाल हैं, इतने सारे इंद्र आएंगे जाएंगे, तब तक का इतना लंबा टाइम है रोमासा मुनि के पास। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। तो मैं इस परमानेंट, जो इम्परमानेंट चीजें उसमें इतने अरेंजमेंट क्यों करूं कि मैं हर चीज और जैसी उसको बात समझ में आई, उसने बोला विश्वकर्मा जी थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, जितना मेरे पास है उतना बहुत है। इस लीला के साथ मैं फिनिश करता हूं, लेकिन इससे एक बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है कि हमें ये जो हमें क्षणिक शरीर मिला है ना, ये थोड़ी सी एक दो पैसे की, मतलब ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो बुद्धि मिली है और ये जो हमें कैपेबिलिटीज मिली हैं, इसको आप कैसे लगाओ कि आप उस इस शक्ति को आप कहाँ यूज करो जहां पर वो परमानेंटली यूज आए, ना कि क्षणिक के लिए। अत्याहार प्रयासश्चा प्रजल्पो नियमाग्रह जो हमने देखा था, उसमें अत्याहार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरी एनर्जी हमारी इस जगह को बहुत अच्छा बनाने में लगा रहे हैं। ये जो भौतिक जगत है इसको अच्छा बना लो, इसको कंफर्टेबल बना लो। प्रभुपाद कहते हैं आपकी जो भौतिक जगत है उसको आप उतना बनाओ कि आपका शरीर और आत्मा साथ में रह सकें, ताकि आप सेवा कर सको। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक घर है, जरूरी नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने का। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने ले ली है और आपको लगता है कि आपका इतना पैसा है कि आपको उससे जितना एफर्ट करे उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तब तो ले लो। लेकिन जबरदस्ती एफर्ट करना, जैसे एक और प्रॉपर्टी ले ली, फिर एक और प्रॉपर्टी करी, तो फिर एक और जॉब करनी पड़ी, तो पहले 4 दिन काम करते थे, अब 7 दिन काम करते हैं, पहले 8 घंटे दिन में काम करते थे, अब 12 घंटे करते हैं। तो वो जो 4 घंटे एक्स्ट्रा आए उसमें आपकी भक्ति गई, वो जो 4 घंटे आप भक्ति को देते थे वो गया। तो क्या हुआ कि आपने अपना जो इतना मूल्यवान समय था जिसको आप भक्ति में लगा सकते थे, वो ऐसी जगह लगा दिया जो टेम्परेरी है, जैसे वो इंद्र लगा रहा था, है ना। तो इसके साथ ही आई थिंक हम लोग जो भाव भक्ति में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी। अनर्थ निवृत्ति के लिए हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन करा। सो आई विल स्टॉप हियर एंड सी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो और कोई कमेंट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय। और अगर आप लोगों को कंफर्टेबल लगे तो प्लीज, अगर हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें ताकि सारे डिवोटीज के दर्शन भी हो सकें। ओनली इफ इट्स ओके। हरे कृष्ण आदि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कविराज प्रभु की जय। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई रियलाइजेशन हो, कुछ शेयर करना चाहे? कृष्णा प्रभु जी।
अनूप प्रभु का कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। काम कर रहे हैं प्रभु जी। ये इसका कैमरा खराब हो गया प्रभु जी। ओके नो प्रॉब्लम प्रभु जी। मैं ना लैपटॉप पे कोशिश कर रहा हूँ। ओके कोई शेयर करना चाहेगा, कोई रियलाइजेशन, कोई चीज जो आज की क्लास के हिसाब से आप लोग करना चाहेंगे डिफरेंटली? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी गो अहेड। प्लीज प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आप मैं राहुल प्रभु जी को बोल रही थी कि आप प्लीज बोलिए, मैं बाद में बात करती हूँ। पहले आपने ट्रेन में हमें चैंटिंग इंप्रूव करनी है बड़ी मेहनत अभी तो। हाँ प्रभु। अभी तो चैंटिंग ही वही है, कभी शाम को हो रही है, कभी रात को हो रही है, और साथ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। यस प्रभु। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को डील करने की है कि हम कैसे चैंटिंग को प्रायोरिटी दें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो छोटा सा बच्चा होता है, जैसे जब नारायण हुआ था तो ऑब्वियसली पहले 2-3 महीने वो हर 2 घंटे में दूध पीता था। तो पूरी प्रायोरिटी क्या थी? उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाना। मतलब वो दूध पीने में उसको 1 घंटा लगता था, और जब तक वो दूध खत्म होता था उसके बाद आधे घंटे बाद उसको वापस दूध पिलाना होता था। मतलब इन द सेंस कि जब से दूध पीना स्टार्ट करा है तब से नेक्स्ट टाइम जब दूध पीना स्टार्ट करेगा उसके बीच में 2 घंटे। तो क्या होता था कि प्रायोरिटी इतनी ज्यादा वो थी, और है ना, नेसेसिटी तो कर लिया हम लोगों ने। अगर वो नेसेसिटी के बाद हम लोगों ने क्या, हम उसको हर 2 घंटे में थोड़े अटेंड करते हैं अब, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उस वक्त हमें पता था कि अगर हमने उसको दूध नहीं पिलाया हर 2 घंटे में के लिए ना, अब उसके लिए जो प्रॉब्लम होगी, तो वो जो सीरियसनेस थी उसने हमें ये करा कि उसको हम 2 घंटे में बनाएंगे। लेकिन हमें क्या है, ये जो हरि नाम है इसकी हमें सीरियसनेस एग्जैक्टली उतनी है जितने उस बच्चे को दूध पिलाने के कारण उसकी जिंदगी को खतरा है, वैसे ही हमारी जिंदगी को खतरा है अगर हम चैंटिंग ना करें, चैंटिंग को प्रायोरिटी ना दें। तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठो। ये नहीं कहता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो या फिर कुछ वो करो, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि, और जो लोग सुबह उठ के कर रहे हैं चैंटिंग, मैं चाहता हूँ वो कुछ शेयर करें, उनको कैसा लग रहा है, क्या है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ना लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो लोग सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं वो थोड़ा सा शेयर करें कि और जैसे अभी तो सुमित प्रभु भी काफी टाइम सुबह चैंटिंग करते हैं, है ना। राहुल प्रभु ने भी बीच में 1-2 बार करी थी। सौरभ प्रभु भी पहले करते ही थे चैंटिंग सुबह। तो सुबह की चैंटिंग में और दिन की चैंटिंग में और रात की चैंटिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सीरियसनेस, मैंने बताया ना कि necessity is the mother of creation, invention. So invention के necessity नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अगर हमें नहीं लगेगा कि हमें necessary है ये चीजें, तो फिर नहीं होगा प्रभु। और इसको अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बना लोगे तो जैसे मैंने बताया ना, सम सिद्धि हरितोषणम, एक बार आपकी चैंटिंग को आप प्रायोरिटी बना लोगे तो लाइफ की सारी चीजों में पोषण आ जाएगा। जैसे जड़ में पानी डालने से सारा का सारा पत्तियां वगैरह सब पोषण मिल जाता है ना, वैसे आपकी चैंटिंग इंप्रूव होगी तो भक्ति का पूरा रस आने लग जाएगा, है ना। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। हेमा माता जी आप पूछ रहे थे? मैं बस ये कहती, लास्ट टाइम जैसे मैंने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि चैंटिंग करते हुए जैसे अगर हम कुछ लेक्चर सुन सकते हैं तो इज इट ओके, आपने मना किया था। तो नाउ हैव स्टॉप्ड और मैं सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग ही करती हूँ अब। बहुत अच्छा माता जी। तो अब मुझे लगता है कि ये रियलाइज होता है कि नहीं, चैंटिंग सीरियसली मैं कर रही हूँ, मैं नाम ले रही हूँ। तो अब सच में अब जमीन आसमान का ही कहूंगी कि फर्क लगता है। पहले ये था कि पता ही नहीं चलता था 1.5 घंटा 2 घंटा कब निकल गया चैंटिंग में, क्योंकि लेक्चर चल रहा होता था। पर अब पूरी कंसंट्रेशन होती है। वो अलग बात है कि दिमाग तो इधर उधर घूमता ही है, उस पे कंट्रोल नहीं है, पर फिर भी हाँ, उसको वापस लेके आने में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वापस जल्दी खींचना आसान हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। अभी ना जैसे इनकी प्रभु की अमोघ लीला प्रभु की क्लास में उन्होंने बोला था कि सबसे डेंजरस और सबसे ज्यादा बोरिंग कंपनी जो है ना वो किसकी है पता है? खुद की। क्योंकि चैंटिंग में क्या होता है कि चैंटिंग इज द ओनली टाइम जब आप अकेले हो, ना कोई आपको देख रहा है, ना ही कोई आपसे वो कर रहा है, ना ही उसमें क्या है आपकी कोई ईगो नहीं है। ईगो इन द सेंस ना तो आपको कोई देख रहा है, ना ही किसी को पता है आप चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। और सिर्फ ये एक जगह है जहां पर आपके और कृष्णा के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में घुसा देते हैं व्हाट्सएप, उसमें घुसा देते हैं यूट्यूब, उसके बीच में घुसा देते हैं ये पढ़ाई वो पढ़ाई, तो उससे क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यू राइट माता जी, व्हेन वी डू समथिंग डू इट प्रॉपरली and it will give results, है ना? Yes प्रभु जी, thank you। और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर कोई रियलाइजेशन? नेहा माता जी, आप सुबह की चैंटिंग का कुछ रियलाइजेशन शेयर करोगे? प्रभु जी नंदिनी थोड़ा क्रैंकी हो रही है। आई एम सॉरी, मैं चाह रही थी कुछ शेयर करना पर आई एम रियली सॉरी प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। निशांत प्रभु आप शेयर करोगे सुबह की चैंटिंग का कुछ? हाँ जी प्रभु, वही है कि सुबह और बाद में करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब बाद में तो जैसे हेमा माता जी ने कहा ना कि पता ही नहीं चलता कि इधर उधर देख रहे हो, कभी पेड़ पौधे देख रहे हो, बाहर अगर वॉक करते हुए कर रहे हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता और तुम्हारे हो जाते हैं राउंड फटाफट से। पर जब अंदर कमरे में बैठ के करोगे, एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करोगे, तब पता चलता है कि चैंटिंग एक्चुअली में है क्या। तो और अच्छा लगता है कि थोड़ा टाइम दिया है। नहीं तो वो तो टाइम दिया ही नहीं है ना, वो तो तुमने कुछ और किया साथ में, तो वो टाइम वो तो काउंट ही नहीं होता बेसिकली। वो तो जस्ट कर रहे हो बस, तो जस्ट नाम वो पूरा कर रहे हो आप, चेक बॉक्स के हाँ मैंने 16 कर लिए हैं। तो सुबह करने से तो फायदा होता है, मतलब पता चलता है कि कुछ कर रहे हो। और अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, लाइक कई बार क्या होता है कि 16 में भी लाइक कुड बी 2 घंटा सुबह लोगों के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट विद 2 राउंड की सुबह मैं उठ के 2 राउंड सुबह जल्दी करूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। वही 2 राउंड क्या करेगा, इतना प्यूरिफिकेशन देगा कि आपको इतना इंस्पायर करेगा कि आप आगे भी करोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना मैं सिर्फ एक राधे हरे कृष्ण 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 हरे, एक हरे पे ध्यान देता हूँ, तो वो क्या कहता है, हरे क्या होता है, वो इंजन की जैसा है। वो एक इंजन चलता है तो पूरी की पूरी ट्रेन उसके साथ जाती है ना। तो अगर आप एक राधे पे जाओगे तो आपका मन कहता है अरे वाह यार तूने एक पे कंसंट्रेट कर लिया, वेरी गुड वर्क। तो क्या होता है कि उस खुशी में आपको नेक्स्ट में भी जाने का अच्छा होती है, अरे वाह यार अपने आप को शाबाशी दे दी, नेक्स्ट वाले में बस एक बार एक और राधे सुनना है, बस हरे सुनना है, एक बार और हरे सुनना है बस। तो उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी ट्रेन चलती है धीरे धीरे। तो अगर एक राउंड भी सुबह हो सकता है तो एक भी राउंड करो, लेकिन डेफिनेटली हर किसी को मैं रिकमेंड करूंगा कि सुबह की चैंटिंग हो सके जितना हो सके उसको अप्लाई करो। एक से शुरू करो, फिर उसको इंक्रीज करो धीरे धीरे, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी मतलब कई बार हम लोग रजोगुण में आके कर लेते हैं कि नहीं यार आज मेरे को करना है, आज मेरे को क्लास सुनी है, मैं सुबह उठ के पूरे 16 राउंड कर दिए सुबह। फिर उसके नेक्स्ट डे से 16 के 14 हुए, फिर 13 हुए, फिर 12 हुए, फिर 11 हुए, 10 9 8 7 फिर 0, और उसके बाद रात को भी 0, फिर उसके बाद 0 0, यू नो। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा दिस इज आवर माइंड, क्योंकि हमारा माइंड इज डिजाइन्ड टू डू दिस, है ना। तो हमें क्या करना है कि वी नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ, कि एक डिसिप्लिन बना लो कि सिर्फ मैं 2 राउंड सुबह करूंगा ही करूंगा, बाकी मैं कभी भी करूं, लेकिन 2 राउंड मैं सुबह करूंगा। The only time I won't do it if it's very extreme emergency. बस इतना अगर बना लोगे तो फिर it will help. और उसके लिए सुबह जल्दी सोना थोड़ा सा it will really help. जैसे वो रोमासा मुनि जो थे, उनको लगता था ये टेम्पररी वर्ल्ड है इसकी क्या, इसमें क्या वो करना इसके बारे में क्यों इतना मारामारी करना। और हम लोगों को क्या लगता है कि this is the only thing. आज है कल नहीं है, परसों फिर है ना, क्या फर्क पड़ता है
anyway, I think एसोसिएशन से काफी फर्क पड़ता है. अगर आप ऐसे डिवोटीज की, मेरी चैंटिंग सिर्फ इसलिए सुबह होने लग गई क्योंकि मेरे को डिवोटी एसोसिएशन मिलने लग गया. निशांत प्रभु जब लॉग इन करते हैं तो मेरा एकदम से ना वो बढ़ जाता है, मोटिवेशन लेवल डबल हो जाता है. मैं तुरंत मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है कि हाँ यार देखो एक और पर्सन आ गया. और ये एक्चुअली होता है जब आप किसी के साथ बैठ के, जब आपको पता है सामने कोई कर रहा है और आप भी कर रहे हो ना, तो डबल एनर्जी हो जाती है एकदम से. और जब मैं अकेला होता हूँ, कई बार मैं अकेला होता हूँ वीकेंड पे कभी, तो मेरे को उतना वो नहीं आता है, उतनी एनर्जी नहीं मिलती, पता नहीं क्यों. लेकिन जब वीकडेज पे जो लोग होते हैं, माता जी, शांत प्रभु है ना, सुमित प्रभु, तो और स्वर्ण कृष्णा प्रभु, गोपी वृंदा माता जी, तो बहुत एकदम से ना बहुत वो बूस्ट मिलता है. तो इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है. और मेक श्योर कि आप डिवोटीज से कांटेक्ट में रहें वीकडेज में भी, है ना. इसीलिए हम लोगों ने वो रीडिंग क्लासेस भी रखी हैं ताकि मेरे लिए तो सबसे अच्छा ये है कि मुझे किसी न किसी तरीके से डिवोटी एसोसिएशन मिल जाती है, क्योंकि ये क्लासेस हैं, फिर वो 3 रीडिंग क्लासेस हैं, फिर एक भक्ति शास्त्री की क्लास है, फिर एक भक्ति वैभव की क्लास है. तो 6 दिन ना, हफ्ते में 6 दिन मुझे डिवोटी एसोसिएशन मिल ही जाती है कैसे न कैसे करके. तो उससे क्या थोड़ा मेरा ना एनर्जी लेवल हाई रहता है. वरना डिवोटीज के बिना बहुत मुश्किल है, कुछ भी कर लें अपन, ज्यादा दिन नहीं टिकती चीजें. और किसी को कुछ शेयर करना है? अनूप प्रभु. प्रभु ये तो क्लास हैवी इतनी हो जाती है कि पहले 10-15 मिनट ना जब आप पूछते हो ना कि यार किसको शेयर करना, अभी तो डाइजेस्ट हो रहा था वो ना. ये जो रोमासा मुनि की कहानी मैंने सुनी थी ना, तो मेरे को भी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा था. मैंने कहा बहुत टाइम लगा. जैसे ना नींद पता है कि क्या करना है ना, जैसे नींद में से जागते हैं ना, वही अभी यार जैसे कोई ऐसे पकड़ के ना उठा दे, बेटा उठ जा अभी. तो अभी उठे हैं, अभी फिर रियलाइज होता है यार, फिर वही काम करते हैं ना, फिर वही है. फिर आप पूछते हो कि अरे कोई क्वेश्चन है, रियलाइजेशन ऐसे होता है. नहीं प्रभु, इट्स गुड कि ना हम लोग, क्योंकि मैं कुछ चीजें जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपने लिए ही बोल रहा होता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ना मैं जब ये सब चीजें तैयार कर रहा होता हूँ तो मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आती है मेरे खुद के बारे में, कि कहाँ कितना मतलब कितना मुझे पता चलता है कि मेरी भक्ति में डेप्थ नहीं है. और अभी मैं, आप लोगों में से किसी ने वो पढ़ी है जर्नी होम बुक? किसी ने पढ़ी? नहीं. तो मैं अगली क्लास में आई विल रीड 2 pages from it. मैं लिटरली आई वाज क्राइंग उसको पढ़ने के बाद. इट इज सच ए ब्यूटीफुल. ये राधानाथ स्वामी महाराज ने लिखी है एक बुक, वो किसी एक डिवोटी से मिले थे वहां पर वृंदावन में. बट उनको पढ़ के लगता है कि यार हमारी भक्ति तो वो है, मतलब इट्स नॉट इवन ए रिफ्लेक्शन. भक्ति का रिफ्लेक्शन है, बट रिफ्लेक्शन भी नहीं है हमारा, तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. एनीवे, सो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस इट. बट मेरे को इससे ये पता चलता है कि कितनी डेप्थ नहीं है और कितनी डेप्थ और चाहिए. और इसलिए मैं इसको बताने से क्या होता है कि इससे हम लोग ना आचार्यों की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. क्योंकि हम लोग ये चीज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उससे हम लोगों को बहुत सुकृति मिलती है, उससे हमारी डिवोशनल डेप्थ इंक्रीज होती है. और ये मेरे को, अगर मैं ये सब नहीं प्रिपेयर कर रहा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कितनी शैलो है मेरी भक्ति. इसको करने के बाद पता चलता है कितनी शैलो है. तो देखते हैं अभी, बाकी तो भगवान के हाथ में. चला रहे गाड़ी. चलो आप लोग ध्यान रखें. हाँ बोलो. पंजाबी में कहता है कि इससे पता लगता है मेरी भैंस ना कितने पानी में है. पानी में. चलो ठीक है. चलो कोई नहीं, ध्यान रखना प्रभु. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंद. हरि हरि. हरि हरि बोल.